So it is show time, guys. All of you who are watching me, welcome back to my channel, Unlock Psychology with Shweta. And I hope you all are feeling fantastic. तैयारी जोरों शोरों से आज हो चुकी है 29 तारीख और गिन के बचे हैं बहुत ही कम दिन. अब ऐसे में तैयारी भाई एकदम जीत की होनी चाहिए. आई नो आई एम बीइंग रियली ये क्या कहते हैं आइडियलिस्टिक एंड डायलॉग बाज राइट नाउ बट मजा आता है यार कभी कभी ये डायलॉग बाजियां करने में. सो तैयारी कैसी चल रही है पहले मुझे ये बताओ. और थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के लिए. चैप्टर 2 की रिवीजन शुरू करेंगे और फटाफट से उससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब हैं उनको गो थ्रू करेंगे. थिंग्स दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू उसको गो थ्रू करेंगे. Muskan has joined the live session. So, hi Muskan, I hope you're doing fantastic, dear. And thank you for joining me today. कल तुम ज्वाइन नहीं कर पाई थी ना. कल I was thinking that you might join the session yesterday, but somehow I think you missed it. So yes. And what else मेरी यश से बात होती रहती है, वंश से बात होती रहती है. These are children who always keep in touch. Vansh in fact sends a lot of inbox on Instagram as well about his things. तैयारी अब स्टार्ट हुई है मैम. वेरी ग्लैड वंश. दैट शुड बी द स्पिरिट और इसी तरह से तुम्हें आगे बढ़ना है. और जो मैंने तुम्हें इनबॉक्स में बताया उस बात का खास ध्यान रखना है बिकॉज दैट्स अ हार्श रियलिटी. Okay. Hi Shashank. I hope you're doing well, dear. Thank you for joining. Acha. As I'm done with my history exam, now I'm gonna put all my efforts in psychology. That's fantastic. How was your history? It was today, right? Yes. How was it? How was your history today? कैसा रहा? अब तैयारी कैसी रही? और certainly अब तो भाई सारी जान साइकोलॉजी में मारनी है. कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि you know miss it by any chance for that matter. तो वो तो होने से रहा. तो of course. KNU has joined me saying hello. So hello KNU. Looks like you're a new person. So welcome on board. And I hope things are good at your end. तैयारी अच्छी होगी या होनी चाहिए. मैं तब तक अपना PDF ओपन कर लेती हूँ so that you all can get to have an access to what we would be doing today. I can share the screen with you all. Just give me a second. मैं अपना PDF ओपन कर ले रही हूँ. Meanwhile आप लोग भी अपनी बुक निकाल लीजिए so that if I tell you anything to mark, anything to important question अगर मैं simultaneously बताती रहती हूँ तो उसको आप सभी लोग अपने पास लिखते चले जाएं. ठीक है. यूट्यूबर सागर सोनकर. हाय सागर सोनकर. बड़ा अच्छा नाम है यार. It was best, but let me tell you, MCQ this time was surprising. Oh, see, they have to be. Moreover, what ना कि ये कोविड के बाद ना things have changed a lot. काफी ज़्यादा ये हुआ है कोविड के बाद. तो of course वो लोग they are also trying क्योंकि rationalized syllabus है. तो rationalized syllabus से उन्हें काफी ज़्यादा मतलब सोच समझ की चीजें देनी पड़ रही हैं. So that's the reason they are making it really challenging. And children have to be really well aware of what they're studying. मतलब they can't just go with the superficial study of the subject. So psychology के साथ भी same होता है. मतलब गिने चुने कुछ ही chapters हैं, है ना. तो इस वजह से क्या है ना कि यहाँ पे भी MCQ चैलेंजिंग हो सकते हैं because they can't really give everything on the platter for you all ना. So वही तो बात है. मतलब कि कहते हैं कि 90 से 95 की जर्नी सबसे टफ होती है. देन दे से कि 75 से 85 की जर्नी टफ होती है. मतलब ये जर्नी वही लोग क्रॉस करते हैं जिनकी थरो अंडरस्टैंडिंग होती है. सो मतलब समझने के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो फॉर साइकोलॉजी ऑल्सो 1 मार्क काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो सकते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी मुश्किल हो सकते हैं, मैं कहूँगी ट्रिकी हो सकते हैं. ओके. Yes, Sagar, we will be starting with the class. Shashank, I'm scared MCQ in psychology as well. Don't worry, yeah. You just need to be very thorough. Meanwhile, me thinking bio will be easy and it's got totally opposite. अरे you can't really predict anything to be extremely honest. मतलब कि ये जो सिचुएशन चल रही है ना उस पर तो स्पेसिफिकली आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके. So but just be ready for everything that you're going to face in the exam. Sit with your presence of mind and मुझे लगता है everything will be
Very, very smooth. Uh, Muskan is saying, I'm going to watch your term one walk video for on marks. Yes, 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 certainly. I've already shared it on my this thing, community post. So certainly you can watch it. It's going to help you. Ma'am, my psychology exam is over and MCQ are very tricky, but I handled it. How is it that yours is over? Which board are you from? Motivational man. And if possible, can you share the question paper with me so that I can share it with the rest of the other students as well and उनको भी इससे फायदा हो. I think this is the reason we have made this platform कि everyone gets the benefit of what they're doing now. So if possible, motivational man, you can either send me the question paper on my email address, which is unlockpsychology3 at the rate gmail.com, or send it to me on my Instagram handle or inbox, which is in at the rate unlock psychology. So यार possible है तो motivational man please मुझे कोशिश करो भेजने का, so that the rest of the others can also get the benefit of experimenting and trying out new type of question. Q Mira Bubu. I don't know what's that. Please upload the question paper. Yeah, yeah, yeah. I've requested everyone. I've requested on all of your behalf right now. चलो शुरू करते हैं चैप्टर 2, जिसका वेटेज अगेन सबसे ज्यादा होता है फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है सेल्फ से रिलेटेड, एक है पर्सनालिटी से रिलेटेड. तो कंसिडर ये करिए कि दोनों ही पोर्शन से सफिशिएंट क्वेश्चन आते हैं. एक एक तो मतलब आएगा ही आएगा, एंड देयर इज चांस कि एक से ज्यादा भी आ जाता है. ओके मुस्कान, गेस्ट पेपर क्वेश्चन पेपर यार मैं बना तो नहीं पाऊंगी, बट सर्टेनली आई हैव कॉन्टैक्ट इन अदर स्कूल्स आल्सो, सो मे बी आई कैन आस्क फॉर प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर एंड शेयर इट विद यू ऑल. सो दैट इज समथिंग आई कैन डू इट विद यू. ठीक है. ओके. सो एज आई सेड कि सेल्फ और पर्सनालिटी में दो भाग में डिवाइडेड है. तो क्वेश्चंस आप कौन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज कि फॉर एग्जांपल सेल्फ आइडेंटिटी या पर्सनल आइडेंटिटी, ये दो तरह के कॉन्सेप्ट है इन योर टेक्स्ट बुक, इफ यू कैन सी, राइट. सो इन दो तरह के कॉन्सेप्ट में दे कैन जस्ट प्रिपेयर अ कैरेक्टरिस्टिक केस स्टडी काइंड ऑफ अ थिंग, एंड दे कैन आस्क यू कि विच टाइप ऑफ सेल्फ या विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी आर दे रेफरिंग टू. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि पर्सनल सेल्फ क्या होता है और पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है. इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, अगर आपको पता है तो यू विल बी एबल टू डू दैट. ठीक है. सो आई एम नॉट गेटिंग ऑन टू कि ये क्या है वो क्या है. आई थिंक वी आर sorted with that kind of a level at the moment. हमें वो करने की जरूरत नहीं है, right? I'm sure we all agree with it. Another question that you need to be prepared with is the difference between self as an object and self as a subject. Now again, what they'll do is कि they'll give you an example कि मीरा या एक लड़की है या एक बंदी है, and she's getting really emotionally disturbed because of her parents. Parents, they are going through a separation. So this girl Mira is facing a lot of emotional trouble and a lot of a lot of challenges to adjust in her society. Which type of self are we referring to? So that's just a hypothetical example I've created for you all. So this is, in such a case, you're expected to tell us whether it's a self as a subject or self as an object. Okay, right. You can give me an answer also. Meanwhile, I think that would be really nice if you can just keep guessing the answers to the question that I'm asking you all. Okay, guys, मेरा live session जो चल रहा है उसको एक बार like भी कर दो, so that maximum notification could go to a lot of other people as well. Okay. Another thing that you need to know कि familial self or relational self or social self, ये सभी alternate names हैं, and they can be used interchangeably. So another fill in the blanks or maybe a one mark question could be asked where they can say about कि ये क्या होता है, where they can ask about ki, what is the alternative name of a familial self, then you need to say relational self. Okay, so इस तरह के वन मार्क क्वेश्चन जो हैं वो आप सभी लोगों से पूछे जा सकते हैं. तो आपको अपनी किताब के कॉन्सेप्ट्स जो पता हैं उनको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करके चलना है. यानी कि आपको लेवल 2 प्रोसेसिंग करनी है, इफ यू रिमेम्बर द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस अर्थजेंस की. ठीक है. यानी कि यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट relating with the existing information,
एंड अंडरस्टैंड कि अगर ये दूसरे तरह से पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, अगर वो होगा तो आप उसको क्या जवाब देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी है। इट कांट बी अ टू द पॉइंट स्ट्रेट तैयारी दैट यू कैन कम अप विद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ एस्टीम, इनकी डेफिनेशंस यू मस्ट गेट ओवर विद इट। एक नंबर में पूछ सकते हैं डिफाइन सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ एफिकेसी। सो ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो यू मस्ट ऑल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ 1 मार्क डेफिनेशन फॉर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। ऑल्सो यू नीड टू नो दिस थिंग that the notion of self efficacy is based on Bandura social learning theory. So again एक नंबर का सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि सेल्फ एफिकेसी थ्योरी जो है किसके सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड आउट है या क्या उसका ग्राउंड वर्क था। सो यू मस्ट नो दैट इट्स बेस्ड ऑन Bandura social learning theory. So this is also a 1 mark question that could come to you all. Okay, so far good to go. Give me a thumbs up or something to tell me if it's all fine so far. Just a second. Okay. ऑलराइट, अगला सवाल जो आपसे इस पोर्शन में पूछा जा सकता है वो ये होता है कि सेल्फ रेगुलेशन की टेक्निक्स क्या हैं अलग अलग, या सेल्फ कंट्रोल की अलग अलग टेक्निक्स क्या हैं। सो यू नीड टू टेल अस अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सो ये वाला ये वाला पोर्शन आप सभी लोग कवर कर सकते हैं। एंड इसको आपको पता होना चाहिए एज इट इज द 3 पॉइंट्स। यू डोंट हैव टू नो देम इन द सेम ऑर्डर बट रादर यू नीड टू नो देम कि ये 3 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आई जस्ट क्विकली, शशांक व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इसका पार्ट नहीं है, सो नॉट हियर। एनीवन फ्रॉम पटना? ओके, हाय गढ़वाली पार्टनर। I don't know, but if there's somebody, they'll certainly answer you. I'm from AMU, and psychology paper is done here on 25th March, but 2 questions are from out of syllabus, and I complained it. Okay, okay. ठीक है यार, motivational man. If still in case if you can share the question paper with you with all of us, बहुत ही मदद हो जाएगी बाकी सभी बच्चों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एज अ कल्चर इन सेल्फ, ये वाला जो सवाल है इसको भी आपको सोच समझ के करना है। टेक्निकली देखो, एज आई ऑलवेज से कि कोई भी पोर्शन छोड़ना बहुत समझदारी का काम नहीं है आपकी बोर्ड की क्लास के अंदर, बट आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे वो मैं आप सभी लोगों को मेरी क्लास के अंदर बता दूंगी। ठीक है, तो जब हम कल्चर एंड सेल्फ की बात करते हैं, सर्टेनली यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टेट कि रोल ऑफ कल्चर इन डिफाइनिंग और इन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ क्या होगा। सो इसमें आपको ये जो डायग्राम दे रखा है फिगर 2.1 कि सेल्फ इन द वेस्ट पर्सपेक्टिव एंड सेल्फ इन द इंडियन पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसको समझाना है और इस डायग्राम को भी बनाना है। मतलब ये मतलब कि इस बात को आप अपने जहन में बहुत अच्छे से भर लें कि सवाल में अगर ये पूछा है कि डायग्राम बनाना है या नहीं पूछा है कि डायग्राम नहीं बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है। दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मतलब कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैन कॉज नो हार्म। आई टेल यू कि मैं जब पेपर करेक्शन के लिए गई थी सीबीएसई के, तो उस टाइम पे एक बच्चा था जिसने, एंड ये जो पेपर करेक्शन था इट वाज ड्यूरिंग द ओल्ड पैटर्न। ओके, सो इस टाइम पे क्या हुआ कि उस बच्चे ने 6 नंबर के या जितने भी 4 नंबर में जो ऑप्शन क्वेश्चंस आया करते थे बैक देन, उसने वो सारे सवाल अटेम्प्ट करे थे। ओके, सो दिस चाइल्ड हैड अटेम्प्टेड ऑल द ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब जैसे और करके सवाल आते हैं ना, तो उसने दोनों दोनों अटेम्प्ट किए हुए थे बिकॉज प्रॉब्ली स्पीड अच्छी रही होगी तो उसको काफी टाइम रहा होगा, तो उसने फटाफट फटाफट सारे अटेम्प्ट कर दिए। सो इस केस में क्या होता है ना, बच्चे से गुस्सा होके उसको मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। आई मीन दिस इज अ मिसकंसेप्शन दैट अ लॉट ऑफ टीचर्स इनकरेज एंड एनफोर्स। रादर क्या किया जाता है कि, अच्छा, आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल कि आप दोनों ऑप्शन अटेम्प्ट करो, यू नीड टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द एग्जाम, यूज 15 मिनट्स एंड डू इट, क्योंकि वो बच्चा एक्सेप्शनली टैलेंटेड था, उसको फुल मार्क्स मिले थे उस ईयर। तो बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो क्या हुआ कि जो भी बेटर अटेम्प्टेड क्वेश्चन होता है ना, उसके मार्क्स को काउंट किया जाता है। यानी कि अगर बच्चे ने 1 2 क्वेश्चन ऑप्शनल अटेम्प्ट करे, एक में से 4.5 मिला है और एक में से 5.5 मिला है, तो उसका 5.5 वाला क्वेश्चन काउंट होगा, उसका 4.5 वाला क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। तो
जिसमें उसके हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए होते हैं, वो वाला क्वेश्चन को कंसिडर किया जाता है. सो दिस इज व्हाट वी डू इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, बट दैट डज नॉट मीन आई एम एनकरेजिंग यू ऑल कि आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. सो डोंट डू दैट. कई एग्जामिनर फिनिकी होते हैं, पागल होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, घर से लड़ाई करके आते हैं. सच में, आई मीन आई कनेक्ट टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू पीपल टेल अबाउट एंड स्पीक अबाउट टीचर्स. तो ये होता है, एंड दे टेक आउट देयर फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर ऑन द पेपर, सो दे डू समटाइम्स. ठीक है. हाँ, सो आई वाज कमिंग बैक टू इट कि यार क्वेश्चन पेपर आंसर ऐसा तैयार करो कि आपके नंबर कोई काट ना सके. ठीक है. सो मेक श्योर कि आप इस डायग्राम को हमेशा हमेशा ड्रॉ करो जब भी आप कल्चर और सेल्फ की बात करेंगे. सो ऑन दैट नोट, योर सेल्फ पोर्शन इज ओवर. सेल्फ पोर्शन से बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ इट, व्हिच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू ऑफ कोर्स नो कि पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या होती है. ये मतलब दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो कि, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब दिस इज समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल फॉर सो मेनी अदर रीजंस, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट से पूछा जाता है. ठीक है. और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ये सब कर लेना, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू नीड टू डू इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड ट्रेट. ठीक है. टाइप एंड ट्रेट अप्रोच में जो डिफरेंस है वो है द टाइप अप्रोच जो है लोगों को डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से ऑन अ रियली ब्रॉडर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. वेराज जब हम ट्रेट अप्रोच की बात करते हैं, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड दे प्रोवाइड, दे डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअल्स ऑन अ वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी. मार्क करानी है. अच्छा, डेफिनेशन मार्क करानी है, तो डेफिनेशन तो यही दी हुई है. मार्क, मतलब दिस नथिंग टफ इन दिस. Here it refers to a characteristic way of responding to individuals and situation. You can use this also, and पीछे glossary में जाकर के भी कर सकते हो. ठीक है. So you can do this. अच्छा. Now, um, yeah, apart from that you need to know कि interactional approach क्या होता है और उसमें एग्जैक्टली क्या होता है. सर्टनली कंसेप्शलाइजेशन के बेसिस पे आपको चीजें अपने दिमाग में क्लियर तो करनी ही पड़ेगी कि ट्रेट, टाइप, इंटरेक्शनल, इनका क्या मतलब है, वो आपको सब कुछ बहुत क्लियरली पता होना चाहिए. अब बात करते हैं कि टाइप अप्रोच काफी ज्यादा डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव है, तो इसमें से कैसे सवाल बनते हैं या क्या क्या पूछा जा सकता है. जो मेरी समझ कहती है, आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन टाइप अप्रोच से नहीं पूछे जाएंगे. ठीक है. आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, अगेन आपको जो है एक वो दे देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे, एंड दे वुड आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. फॉर एग्जांपल, जैसे हम सत्व गुण की बात करते हैं, यू कैन ऑल सी इट इन हियर. सत्व गुण इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सत्व गुण इंक्लूड attributes like cleanliness, truthfulness, dutifulness, detachment, discipline, etc. So they will say that they will name the characteristics and they will say which guna is this. Or they would probably just speak of a relationship between temperament and body build and would ask who gave it. So I would say कि straight question expect करना बेवकूफ़ी होगी. या they would just relate the temperament and the body type and they would ask which type of what exactly is this concept about. Like, is it endomorphic, are they mesomorphic, are they ectomorphic. So मेरी समझ यही कह रही है कि एक नंबर के सवाल यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है. एंड दे विल गिव यू एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, दे नॉट स्ट्रेट अवे आस्क यू कि बताओ कि किसने क्या दिया था, मीजोमॉर्फ, सॉरी, शेल्डन की थ्योरी को क्या कहते हैं, या ये या वो. सो डोंट एक्सपेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, आई बिलीव, फ्रॉम द trait approach. Okay. Then of course you from here you should know कि फ्राइडमैन रोजमैन ने टाइप ए दिया था, देन टाइप बी किसने दिया था, सॉरी टाइप ए बी दिया था, देन सी किसने दिया था, डी किसने दिया था, या उसमें कौन सी बीमारियां होने का खतरा रहता है, या वो उसमें क्या होता है. सो कार्ल यूंग ने कौन सी टाइपोलॉजी का इन्वेंशन किया था, ये सब पता होना आप सभी लोगों को बहुत जरूरी है. इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन क्या होता है. I mean, these are some concepts that you have to know and should be on your tips. अगली हम बात करें अगर ट्रेट अप्रोच की, सो ट्रेट अप्रोच में ऑफ कोर्स कि पायनियर कौन था.
सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि हु वाज द पायनियर ऑफ ट्रेड अप्रोच। सो यू शुड नो कि पायनियर की बात की जाती है तो सबसे उभर के जो सितारा निकल के आता है वो है हमारा एल्पॉट का। और एल्पॉट की थ्योरी हमें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, तीन ट्रेड्स कौन से थे वो पता होने चाहिए, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। नाउ अगेन या तो सीधा पूछ लेंगे कि भैया बताओ, एक्सप्लेन करो, और या तो वो ट्रेड्स बताएंगे एंड दे वुड आस्क यू कि ये, जैसे कई बार ये सवाल आया है कि एक लड़की को नाइटिंगेल बना करके ऐसे ऐसे करके बड़े बहुत बार ये सवाल पूछा है, दे आर आस्क्ड व्हिच टाइप ऑफ ट्रेड इज दिस, सो इज इट अ सेंट्रल, सेकेंडरी, कार्डिनल। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने ज़रूरी है कि जब भी हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो वी रेफरिंग टू लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस एंड ऑल ऑफ इट। जब भी हम सेंट्रल की बात करते हैं तो वी आर रेफरिंग टू थिंग्स दैट वी यूज टू which is a characteristic of an individual, but they're not as prominent as cardinal traits, right? And जब भी हम cardinal trait की बात करते हैं तो they are the central personality force of an individual, and they define and govern the personality of an individual. So मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको चीजें पता होनी बहुत जरूरी है in order to answer such questions. Okay, all right. In case there's any confusion, do let me know. Okay, just a second, guys. I'll take a moment. ठीक है. Um, Next portion is about your curtail. Curtail ने 16 PF दिया था. 16 PF में क्या होता है? सोर्स रेट क्या होता है? फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था. फैक्टर एनालिसिस होता क्या है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. फैक्टर एनालिसिस वाज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक व्हिच इज बियॉन्ड ऑल ऑफ योर स्टेटस राइट नाउ. तो अगर आपको इतनी डिटेल में नहीं भी पता देन ऑल्सो इट्स फाइन. ठीक है. सरफेस रेट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए. 16 पीएफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. वो क्या क्या असेस करता है वो पता होना चाहिए. डिटेल्स में ऑफ कोर्स आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, बट एक बेसिक जानकारी होना आपको ज़रूरी है. ओके. देन वी कम टू योर आइजिंग्स थ्योरी. आइजिंग सर्टेनली आपने प्रैक्टिकल में भी किया है. सो यू नीड टू नो न्यूरोटिज्म, you need to know neuroticism, you need to know emotional stability, extroversion, introversion. So then the last dimension which is being added later on, and certainly this Eisen's personality questionnaire, which was and what does it actually assess? बहुत simple concept है. I'll answer your question, Muskan. Let me just first explain the things that I'm. Nobita, what is that one? ठीक है. गाइज, एज आई ऑलवेज से कि कोई भी जो है बॉक्स को छोड़ना बड़ी बेवकूफ़ी कहला सकती है. सो लेट्स जस्ट डू द बिग फाइव फैक्टर मॉडल एज वेल. किसने दिया था? पॉल कॉस्टो एंड रॉबर्ट मैक्रेन. ये तुम्हें पता होना ज़रूरी है. इसको लर्न करने के लिए एक एब्रीविएशन यूजुअली आई गिव इट टू माय स्टूडेंट व्हिच आई गिव इट टू यू एज वेल, व्हिच इज ओशन. O stands for openness to experience. C stands for conscientiousness. E stands for extortion, agreeableness, and neuroticism. So you can use this and learn it. And also, you make sure that you learn the characteristics of these particular specific subcategory or big five factor model as well. ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Do not avoid any boxes. That is something not recommended at your level at all. ठीक है. गिन के 5-6 दिन बचे हैं. रज के मेहनत करो. बिल्कुल भी डू नॉट शाई अवे टू actually put in your best efforts for your examination, guys. This can be really really harmful. तो बिल्कुल भी बाउ डाउन नहीं करना है. बहुत जोर शोर से मेहनत करनी है. अब लास्ट क्वेश्चन आई एम गोना टेक इट अप व्हिच मुस्कान वांटेड टू आस्क, और कल मैं साइकोडायनामिक शुरू करूंगी. Again, I think I'm going to take 3 lectures to finish the whole chapter. It won't take a lot of time to actually wind up. मैं कल सारी theories करा दूंगी. And projective technique I'll take it up in the last third session. Now let's see कि 3 लगते हैं कि 4 लगते हैं. Let's see, because I need to discuss the question paper also with you all. जब भी हम गॉर्डन एल्पॉट की थ्योरी की बात करते हैं मुस्कान, so we have this thing, um, 3 traits. एंड 3 traits जो है ना, ये लगाओ कि ये सबसे पहला ट्रेट सबसे इफेक्टिव होता है. सेकंड ट्रेट सेकंड नंबर पे इफेक्टिव होता है, और जो थर्ड नंबर पे होता है वो लीस्ट इफेक्टिव होता है और लीस्ट ऑब्जर्वेबल होता है इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर. सो लेट्स से इफ आई लाइक पराठा इंस्टेड ऑफ रोटी, कैन यू ऑब्जर्व इट? No, you can't observe it, right? And we put it in the category of secondary traits. Okay.
But on the contrary, if I'm somebody who is, who's a hardworking person, and who also believes in equality, who also believes in, giving people an equal opportunity, these are my generic characteristics, and can be observed by people as well. So they fall into the central traits of an individual. अब आते हैं कार्डिनल ट्रेट की बात. कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं वो ट्रेट्स जो इंसान की पर्सनालिटी को गवर्न करते हैं, एंड इट लीड्स द होल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल, जब हम हिटलर की बात करते हैं, सो वी स्पीक ऑफ लॉट ऑफ वायलेंस दैट ही डिड बैक देन, राइट? व्हाई? Because that was the driving force of his whole personality. We can't think of anything else but just violence and killing and, unempathetic behavior of that person. That's what is the cardinal trait of a person. So these this is how you can just distribute and divide the three characteristics or the three traits of an individual as per Alport's theory of trait. Alport's trait theory, sorry. अच्छा जी, वंश को समझना है कि एक्टोमॉर्फ कौन होता है. वंश, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा. फटाफट से मैं समझा दे रही हूँ कि शेल्डन ने कोशिश की थी कि इंसान का जो टेम्परामेंट होता है, यानी कि जो उसका दिमाग होता है, जो किस तरह से काम कर रहा है, और उसका बॉडी टाइप, यानी कि कैसा दिखता है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, विच इज नॉनसेंस टू एन लॉट ऑफ एक्सटेंट. ठीक है, सो उसने कहा कि जो लोग गोलू मटोलू से होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, अच्छे अच्छे से होते हैं, वो दिमाग के थोड़े ठंडे लोग होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, द सोशेबल पीपल, उनको हम कह देते हैं एंडोमॉर्फ्स. मीजोमॉर्फ्स कहा जो थोड़े से मस्कुलर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिनकी बॉडी बिल्ट होती है, एंड दे सेड कि ये लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं और इनमें बड़ा दम होता है, करेजियस होते हैं. ठीक है, देन आते हैं एक्टोमॉर्फ, ये तो थिन फ्रेजाइल लॉन्ग पतले से ढीले ढाले लोग, एंड दे सेड कि वो बड़े ब्रेनी होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, और बड़े दे डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल अ लॉट. बट इसमें कोई रियलिटी है नहीं. ठीक है, बट दैट्स हाउ ही इज जस्ट एक्सप्लेन्ड इट. सो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सो फार अबाउट ट्रेट एंड टाइप अप्रोच. कल से हम लोग साइकोडायनामिक थ्योरी करेंगे. साइकोडायनामिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट जस्ट साइकोडायनामिक बट दी अदर थ्योरीज एज वेल. सो मेक श्योर दैट यू जॉइन मी टुमारो फॉर माय लाइव सेशन ऑल्सो. इन केस कोई भी सवाल है, चैप्टर 2 को ऑलरेडी पढ़ के रख लेना. कोई भी जितने सवाल हैं जो आपको मुझसे पूछने हैं, उनको अपनी लिस्ट डाउन कर लेना, और व्हेन आई कम फॉर द लाइव सेशन मुझसे पूछ सकते हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन ऑन माय लाइव सेशन, बिकॉज पता नहीं, आई वांट टू जस्ट हेल्प यू गाइस. ठीक है, सो चलो देन, ओके, आई विल सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय.